CIMS मेडिका ने हैदराबाद एडिशन ऑफ इंडिया फार्मा एक्सपो 2022 का ऐलान किया, जिसका इनॉग्रेशन आज बतारीख 11 नवंबर 2022 को हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर हैदराबाद में हुआ। इफ्तिताही सेशन का इफ्तिताह चीफ गेस्ट और ऑनरेबल तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर श्रीमती तमिलिसाई सौंदरराजन ने किया और मिस्टर जो थॉमस बिजनेस डायरेक्टर CIMS मेडिका, मिस्टर आलोक शर्मा वाइस प्रेसिडेंट इवेंट्स B2B फार्मा एंड CME CIMS मेडिका, मिस्टर RK अग्रवाल नेशनल प्रेसिडेंट बुल्क ड्रग्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया BDMAIA, श्री P ईश्वर रेड्डी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बुल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर घीसूलाल जैन प्रेसिडेंट तेलंगाना चैम्बर ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, श्री अंजनी कुमार गोयल ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना चैम्बर ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, श्री G रामधन डेप्यूटी डायरेक्टर, मिस्टर निनांद वराले असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड डिजिटल CIMS मेडिका एंड मिस्टर अंकित नरूला ग्रुप हेड इवेंट्स CIMS मेडिका। इंडियन फार्मा एक्सपो इन तमाम लोगों के लिए एक स्टॉप मोड है जो अपने कारोबार को मुख्तलिफ चैनल्स जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, फ्रांचाइज और डिस्ट्रीब्यूशन, उभरते हुए नए कारोबारी मॉडल्स के साथ थोक फरोशों और खरीदारी के अमले के जरिए अपने कारोबार को बढ़ाने का मंसूबा बना रहे हैं। जो रियायती नरखों पर बुल्क प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, अगले 2 दिनों तक इंडियन फार्मा एक्सपो 2022 में हिस्सा लेने वाली कंपनियों को हिंदुस्तान भर में दवासाज सनतों से आने वालों के लिए अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की नुमाइश का मौका फराहम करेगा। पेश है AET Question? You will start first. Hi, I'm Alok Sharma from SIMS Medica. I'm the Vice President of Events, B2B Pharma and CMEs. We have with us Mr. Joe Thomas, who is the Business Director for SIMS Medica India. This is our first year in Hyderabad, Telangana. We've been doing this event, Indian Pharma Expo in Delhi. It's a national level event. We do it with the support of Department of Pharmaceuticals, Chemicals and Fertilizers Ministry, Ministry of MSME. This year we wanted to basically check how Telangana as a market can be explored. Various exhibitors that we have from all over India have been wanting to come to Telangana and Hyderabad because this is a hub of pharma market. We had a chief guest today, Madam Governor, Srimati Tamilisai, Madam. She also stressed on the point that Telangana has been one of the hubs in India, and with the vision and the mission of Modi ji to make India the pharma capital of the world will soon be achieved. We would like to thank all our exhibitors, all our pharma companies, sponsors, our media partners who have been coming here from all over India, the visitors from all over. Today is our first day. The experience so far has been very, very encouraging. Our Madam Governor has also given a very encouraging speech. We have lots of visitors coming from all over India. All our visitors are very, very busy attending to all the visitors and catering to their needs. We have got various types of exhibitors, API, distributors, pharma companies, MNCs, everyone. This expo is how many stalls you have? We have close to around 45 participants from all over India. And that the one that we do it in Delhi, we have close to 80 plus 100 sponsors participating. We want to take this Indian Pharma Expo with support of everyone to the next level. We are doing Delhi, we are doing Hyderabad. Going forward, we are looking at other markets which are growing, markets like Gujarat and various other markets. And we would want to make this a national event, a great success, so that India comes on the global ranks in terms of pharma industry. मार्केट के लिए हमारी फैसिलिटीज़, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स है। यहाँ पे जो भी कंपनीज पार्टिसिपेट करती है अंडर द MSME कैटेगरी, उनको सब्सिडीज़ भी मिलती है। दिल्ली वाले इवेंट में सून हमारे पास हैदराबाद के लिए सब्सिडी आएगी। तो पार्टिसिपेंट्स छोटे हों, बड़े हों, मीडियम स्केल हों, दे ऑल कैन पार्टिसिपेट एंड ग्रो देयर बिजनेस थ्रू इंडियन फार्मा एक्सपो। दूसरे मेडिसिन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ये प्लेटफॉर्म में हमारे पास API कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ऑल टाइप्स ऑफ फार्मा कंपनीज आती है हमारे पास। एंड दे मेजरली ऑल आर अप्रूव्ड, US FDA अप्रूव्ड उनकी फैसिलिटीज़ है, WHO अप्रूव्ड है। सो ये सब अप्रूव्ड फैसिलिटीज़ एंड स्पॉन्सर्स एंड पार्टिसिपेंट्स हैं। है बहुत बहुत वार्म है।
सो फार वेलकमिंग है एकदम. एंड वी आर श्योर कि आगे भी ऐसा ही रहेगा विद द सपोर्ट ऑफ तेलंगाना पीपल, participants and the whole of government. I think we can go to the next level. First of all, Hindi, thank English दोनों बोलना yes. First of all, to attending this show. इंडियन फार्मा एक्सपो जो हमारा ये शो है 11 साल पुराना है. हैदराबाद के लिए हम फर्स्ट टाइम आए हैं. हैदराबाद की मार्केट बहुत बड़ी है. इंडिया में अगर हम बोले तो काफ़ी ग्रोइंग स्टेट है हैदराबाद, अपना तेलंगाना. इसलिए हम अपने शो को दिल्ली से मूव करके हमारे एग्जीबिटर की डिमांड, हमारी इंडस्ट्री की डिमांड पे हैदराबाद में लेकर आए हैं. हम चाहते हैं हमारे एग्जीबिटर्स ने जो बेनिफिट दिल्ली को और जो बाकी स्टेट्स को दिया है वही सेम हम हैदराबाद में भी लोगों को सर्व कर सके. वी आर वेरी थैंकफुल यहाँ की पीपल्स को, यहाँ की ऑडियंस के लिए बहुत इंकरेजिंग ऑडियंस है यहाँ की, काफ़ी सपोर्टिंग है. ये लोग काफ़ी अच्छे लेवल पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं. बीइंग द फर्स्ट ईयर अनएक्सपेक्टेड है कि इतना अच्छा क्राउड यहाँ पे आया है. तो थैंक्स फॉर एवरीवन टू अटेंडिंग दिस शो एंड ऑल्सो यू आर ऑल यू मीडिया गाइज. मतलब हमें इतना सपोर्ट आप लोगों ने दिया है. एंड थैंक्स मिस्टर आलोक शर्मा, मिस्टर जो थॉमस टू सपोर्टिंग आवर टीम. थैंक यू सो मच. हमारे इंडियन फार्मा एक्सपो में हमारे गोल्ड पार्टनर हैं एक्शन मॉलिक्यूल्स हैं, यूनिस्पीड है, हमारे मशीनरी पार्टनर हैं एरो मशीनरीज़, जियोन लेबॉर्ट्रीज़ है, हमारे टी शर्ट पार्टनर हैं फेडरस लाइफ साइंसेज, विजिटर बैग पार्टनर है अक्षर मॉलिक्यूल्स एंड एरो मशीनरीज़. ये हमारे की टॉप पार्टनर्स है, स्पॉन्सर्स हैं. एंड इवन बाकी एग्जीबिटर्स हैं जो हमारे, वो भी हमारे काफ़ी प्रीमियम क्लाइंट्स हैं जो हमें पिछले अप्रॉक्स 11 ईयर्स से हमारे सपोर्ट करते आ रहे हैं. और हम चाहते हैं कि वो अपना सपोर्ट इसी तरह हमारे साथ बनाए रखें. वो भी ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करेंगे, इंडस्ट्री ग्रो करेगी. थैंक यू. Hi, myself Ankit Narula, Group Heads, Events, Sims Medica India Private Limited. We have been organizing this exhibition since last 11 years in Delhi, supported by Ministry of Chemical and Fertilizers, Ministry of MSME and Indian Pharmacopoeia Commission. This is our inaugural edition in Hyderabad. So we welcome everyone to Indian Pharma Expo and thankful to the exhibitors and visitors who have all attended the event. And we are looking forward to conducting more editions of Indian Pharma Expo in coming years. हैदराबाद का पब्लिक बहुत सपोर्टिव है और बहुत कह सकते हैं कि दे आर वेरी वेलकमिंग एंड काफ़ी प्यारे लोग हैं. पहला एडिशन था तो हम लोग इसको आगे और शो को बड़ा करेंगे इधर आके यहाँ पे. और नेक्स्ट टाइम तेलंगाना में फिर कब? अक्टूबर नवंबर में. अभी तो हम लोग ने स्टार्ट किया था 2012 में. तो अभी 2022 में 10 साल बाद वी आर एंटरिंग इन हैदराबाद. सो हैदराबाद में ही लाइक बीइंग अ हब ऑफ फार्मा इंडस्ट्री. सो यहाँ पर आके अभी टोटल पूरे इंडिया में हैदराबाद जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का जो काम है फार्मा इंडस्ट्री को लेकर, जो फ्यूचर प्लान्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसको देखते हुए हैदराबाद इज़ द हब ऑफ फार्मा इंडस्ट्री. From here, save the patients of Puducherry. So I thank Hyderabad for providing such a pharmaceutical hub. For being a pharmaceutical hub, we are able to get and even some of the very rare drugs we could get from Hyderabad, and the whole world was looking at Hyderabad with hope. And all we know, because Bharat Biotech is also in Hyderabad, because of, and we were all doing our medical education, we were all looking to the whole world so that they should give us vaccination. But now we have given vaccination for our patients, our citizens, as well as we have given vaccination for more than 150 countries, which was not even dreamt of when we were all students. Because I should say rotavirus to come to India, because it was introduced in the rest of the world in 1999, but it came to India only in 2015. Polio vaccine took 34 years to come to India, and tetanus vaccine took 25 years to come to India. But now, within 11 months of the onset of pandemic, we have produced our indigenous vaccine, and we are all proud we have taken our vaccine. So with this pride, I inaugurate this expo, and whenever we inaugurate an expo, we pray all this should be preventive. No patient should lose their life
the drugs are to save the lives of the patients. So I congratulate you. I appeal for more research work and cost-oriented drugs.